A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th business studies. So in the last classes we are continuously studying the chapter that is controlling. So in this chapter controlling we have already discussed about the meaning of controlling, okay, and different definition which is given by the different authors. Next, we have discussed the scope of the controlling. Next, nature of the controlling. So, nature of controlling is nature. Controlling is a goal-oriented function. Controlling is an all-pervasive function. Controlling is both backward-looking as well as forward-looking function. Controlling is a continuous process. Okay, so we have already discussed all these things. Next, we have started that is importance of controlling. So what are the importance of controlling in the as a function of the management? So first one is it helps in achieving organizational goals. Next one is judging accuracy of the standard. Third one is making efficient use of resources. Fourth is improving employees motivation. Fifth one is ensures order and discipline. Sixth one is facilitate coordination in action. Okay, so we have already discussed all these. Next we have started, that is relation between the planning and controlling. So what is the relation between the planning and controlling? So first one is nature and concept. Okay, with the help of nature and concept we have studied about the relation between planning and controlling. Next, with the help of the planning and controlling are interdependent and the interlinked. You know very well that the we can't separate both of them. So planning is also dependent or linked with the controlling, and controlling is also interdependent or interlinked. Next, that we have discussed, that is planning and controlling both are backward and the forward looking. Next is planning is prescriptive whereas controlling is evaluative. Next topic that we have started, that is controlling process. So in the controlling process, what are the different process which is done by the controlling function of the management? So first one is it is the setting up of a standard or setting up of a target. Next we have discussed about, that is measuring of the performance. Third we have discussed about the compare performance against standard. Okay, next that is analyzing deviation. Okay, so when there is deviation is found in the actual performance and the planned performance, so in that case we will not brought up to the notice to the top level management. Only the most important deviation will go through the top level management. So the deviation is divided into two, that is two categories divided. So first one is that deviation, those are very important and very urgent to take action, and others in the other category, those deviation are found which are minor or the insignificant. Okay, so we will discuss one of them. First category, that is most important urgent category, that is critical point control. We have already discussed in the last class. In today's class we are going to start with the management by exception. Okay, so let's get started with the point second or category 2. So it is given that management by exception. So it means a manager who tries to control everything may end up controlling nothing. Okay, तो इसका मतलब यही है कि जो मैनेजर है जो ट्राई कर रहा है कंट्रोल करने को सब कुछ, मे एंड अप कंट्रोल नथिंग. वो मे बी वो एंड कैसे कर सकता है कि कंट्रोल उसको कुछ भी नहीं कर पाया. सो द डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड only be handled by manager and minute or minor deviation can be ignored. Okay, तो जो भी deviation है
जो स्पेसिफिक रेंज में आता है शुड बी हैंडल्ड ओनली बाय द मैनेजर्स, ठीक है। वो किसके थ्रू हैंडल होती है? मैनेजर्स के थ्रू ही हैंडल होती है। और जो भी माइन्यूट और माइनर डेविएशन आ जा रहा है उनको हम लोग क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। सो मैनेजर शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी in finding solution for minor deviation. Rather, he should concentrate on removing deviation of high degree. Okay. So manager क्या है? Manager should not waste his time and energy in finding solution. मैनेजर को क्या करना है? अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को उन पे वेस्ट नहीं करना है जो माइनर डेविएशन है, जो बहुत कम डेविएशन है उस पर कोई भी मैनेजर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। उन सारे डेविएशन को क्या कर देता है? वो इग्नोर कर देता है। तो मैनेजर को अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए कि उन माइनर डेविएशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। रादर ही शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिमूविंग डेविएशन ऑफ हाई डिग्री, बल्कि वो किस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करे? जो डेविएशन बहुत हाई डिग्री के हो रखे हैं, ठीक है। तो जो माइनर डेविएशन है वो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करके जो मेजर डेविएशन आ रहा है वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। Yes. So example is that if production cost increases by ₹2, कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ₹2 से इंक्रीज़ कर रहा है, इट कैन बी इग्नोर, बट इफ़ इट इंक्रीजेज मोर देन 2 then manager must try to find out the reason for such increase after identifying the reason for deviation which need immediate attention. Okay, क्या रहा है इसमें कि अगर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ₹2 से इंक्रीज़ करी है, ठीक है, तो इट कैन बी इग्नोर। मतलब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बस ₹2 पर यूनिट इंक्रीज़ करा है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं मैनेजर कि ठीक है ₹2 तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको कवर कर सकता है। बट अगर वही मोर देन 2 हो गया, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट मोर देन 2 हो जा रहा है, देन मैनेजर मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर सच इंक्रीज़, ठीक है। तब उस केस में मैनेजर क्या करेगा? वो फाइंड आउट करेगा रीज़न कि क्यों इंक्रीज़ हुआ है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रीज़न फॉर डेविएशन। क्यों? आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रीज़न, जब वो रीज़न को आइडेंटिफाई कर लेगा कि क्यों ऐसा डेविएशन हो रहा है, विच नीड इमीडिएट एक्शन, जिसका क्या है? तुरंत एक इमीडिएट एक्शन हमें अटेंशन और एक्शन लेना पड़ेगा। These deviation and reason must be brought to the knowledge of top level management for critical evaluation, whereas the increase less than ₹2 can be handled at supervisory level or can be ignored also for some time, ठीक है। तो ये जो डेविएशन है जो हो रहा है एंड रीज़न मस्ट बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द टॉप लेवल। अब ये क्या है? ये मेजर डेविएशन हो रहा है। जब मेजर डेविएशन हो रहा है देन वी विल गो थ्रू द नोटिस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तब हम जाएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे कि यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, कि उनको एवालुएट करे, फाइंड आउट करे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, फिर उसका रीज़न को देखे। वेयर एज द इंक्रीज़, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर लेस देन 2 हो रहा है पर यूनिट, तो उस केस में क्या है? जो सुपरवाइजरी लेवल है, मतलब जो लो लेवल है, वो भी अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है? उसको देख सकती है कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और कैन बी इग्नोर ऑल्सो फॉर सम टाइम। और कभी कभी क्या है? उन चीज़ों को इग्नोर भी ऑर्गेनाइजेशन में किया जा सकता है। बट अगर कोई बहुत मेजर चेंज हो रहा है उस केस में क्या है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को और ऐसा उस केस में एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सो द कॉज फॉर डेविएशन कैन बी मैनी, ठीक है। जो डेविएशन का कॉज है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल फॉल्ट इन मशीनरी में फॉल्ट है, इनएफिशिएंट स्टाफ जो है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, उनके पास ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज उनके पास कम है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास प्रॉपर अमाउंट में रिसोर्स नहीं है। ओवर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब या तो जो भी वो है स्टैंडर्ड है, टारगेट है, उनको बहुत ज़्यादा समझ में आ गया या उनको बहुत कम समझ में आया, हमें पता ही नहीं कि टारगेट कितना है और उसको अचीव कैसे करना है। सो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट कॉज ऑफ डेविएशन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्ट और एक्यूरेट कॉज डेविएशन का फाइंड आउट किया जाए,
क्योंकि जब तक हम लोग एक्यूरेट डेविएशन का रीज़न नहीं जानेंगे तब तक हम लोग कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर डिफरेंट ऑफ द डिफरेंट डेविएशन। ओके, तो हम पहले उसका रीज़न जानेंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी विल टेक इन दी सम प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका है वो है मेरिट एंड एडवांटेजेस ऑफ दी मेरिट और एडवांटेजेस ऑफ द मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन, जिसको MBE बोल रहा है, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसका क्या मेरिट डिमेरिट है? सो फर्स्ट वन इज हियर, इट सेव टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर। ये क्या करता है, टाइम को भी सेव करता है और मैनेजर के जो एफर्ट्स हैं उनको भी सेव करता है। इट फोकसेस अटेंशन ऑफ द अटेंशन ऑफ मैनेजर्स ऑन द सिग्निफिकेंट मैटर्स। ये किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है अटेंशन ऑफ द मैनेजर के अटेंशन ऑन द सिग्निफिकेंट मैटर। कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है उन पे अटेंशन भी करता है, किसको? मैनेजर्स को। सो नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ मैनेजर टू सॉल्व द रूटीन प्रॉब्लम, दीज आर सॉल्व बाई सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोई भी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होगा किसी भी मैनेजर का। जो भी रूटीन एवरी डे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी टाइम का और एनर्जी का वेस्ट नहीं हो रहा है। दीज आर सॉल्व बाय दी सबऑर्डिनेट्स, बिकॉज जो भी मैनेजर्स के या सुपीरियर के सबऑर्डिनेट्स हैं वो सारी उन प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट कर लेंगे। इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिटिकल एंड सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और जो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट भी कर देता है कि कौन बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है और कौन बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। सो इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्रिटिकल एंड सिंपल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था, ये टाइम को सेव करता है, ऑल्सो save the effort of the manager, it focuses the attention of the managers on the significant matters, no wastage of time and energy of manager to solve the basically the routine problem. These all are done by the subordinates or the solved by the subordinates, and it also differentiate between the critical and the simple problems. Okay, next जो point है आपके controlling process का, that is, wait a minute, that is taking corrective measures. Okay, taking corrective measures. Wait. So on comparing the actual performance with the planned performance, the manager will come to know about the deviation between the plan and actual performance. ठीक है, जब कोई भी मैनेजर क्या करता है, कंपेयर करता है किसके बीच में, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच में, द मैनेजर विल कम टू नो अबाउट द डेविएशन। तब मैनेजर क्या है, उन डेविएशन को जान पाता है बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस की, जो भी प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में गैप और डिफरेंस हो रहा है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू नो द रीज़न फॉर सच डेविएशन एंड ट्राइंग टू रिमूव डेविएशन इन फ्यूचर। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब वो कंपेयर करके डेविएशन को फाइंड आउट कर लेता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि नो द रीज़न फॉर सच डेविएशन, कि उसके पीछे का रीज़न को जाने कि डेविएशन क्यों हो रहा है, एंड ट्राइंग टू रिमूव डेविएशन इन फ्यूचर, और फ्यूचर में ट्राई करता है कि ये सारे डेविएशन को रिमूव किया जा सके। पहले तो रीज़न उसका जानना एंड देन प्रिवेंटिव मेजर्स लेना कि हम वो सारे जो भी डिफरेंट डेविएशन हो रहे हैं उनको रिमूव कर सके। द मैनेजर टेक्स मेजर टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन दी ट्रैक। अब मैनेजर ये भी ट्राई करता है कि हर एक चीज़ को वो क्या करे, वापस ट्रैक पे लेकर आए, अकॉर्डिंग टू प्लान। ट्रैक पे लाना मतलब कि जैसे ट्रैक पे है, कोई चीज़ उधर चली गई तो फिर से हम उस पर ले, तो वही सेम चीज़ प्लान जो था, प्लान के हम बियॉन्ड जा रहे हैं तो अगेन उस प्लान के रेंज में लेकर आना। सो टेकिंग करेक्टिव मेजर्स में इन्वॉल्व, तो उसमें क्या करता है मैनेजर, बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स को भी लेता है। अब उसमें से कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स हैं, देखिए,
फर्स्ट जो सिचुएशन है आपका करेक्टिव मेजर्स, फर्स्ट वन इज लेट द सिचुएशन रिमेन सेम इफ़ द डेविएशन आर माइनर। उस सिचुएशन को सेम रहने दो इफ़ द डेविएशन आर माइनर। अगर जो डेविएशन जो डिफरेंस बहुत कम आ रहा है तो सिचुएशन में हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग ने ये चीज़ देखा था कि एक्चुअल और प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तब तो कोई मतलब ही नहीं है, तब वही कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड हो जाएगा कि हाँ कि ठीक है अभी हमें यहाँ पे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उनमें कोई डिफरेंस को फाइंड आउट होता है, उस केस में डेविएशन अगर फाइंड आउट होता है तो डेविएशन देखा जाता है एंड देन उस डेविएशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंटली उसके पे एक्शन लेने की ज़रूरत है और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। तो जिस पे ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है, अर्जेंटली एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो उस पर क्या है तुरंत अर्जेंटली एक्शन लिया जाता है। बिकॉज सारे जो भी डेविएशन आ रहे हैं तो उनको टॉप लेवल तक ही हम लेके नहीं जाते। मतलब अगर जो माइनर हैं, बहुत कम जिसमें डेविएशन आ रहा है, तो उनको एक मिडिल लेवल और सब्सिडियरी लो लेवल तक उसको क्या कर दिया जाता है, सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। बट अगर जहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में डेविएशन आ रहा है देन वी विल गो थ्रू दी टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यही इसमें कह रहा है कि लेट द सिचुएशन रिमेन सेम इफ़ द डेविएशन आर माइनर, कि अगर डेविएशन को देखा जा रहा है कि बहुत कम है तो सिचुएशन को सेम रखा जाता है, कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। रीडिज़ाइन और रीफ्रेम द प्लान्स और स्ट्रैटेजीज इफ़ दीज आर ओवर स्टेटेड और नॉट मैचिंग विद द प्रेजेंट डे बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो भी प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ हैं उन प्लान और स्ट्रैटेजीज़ को रीडिज़ाइन किया जाता है, फिर से बनाया जाता है, रीफ्रेम किया जाता है उन प्लान और स्ट्रैटेजीज़ को इफ़ दीज आर ओवर स्टेटेड और नॉट मैचिंग विद दी प्रेजेंट डे बिजनेस इन्वायरमेंट, कि अगर वो जो प्रेजेंट डे का बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में जो भी प्लान और स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको फिर से रीमेक और रीडिज़ाइन किया जाता है। थर्ड इज़ टेकिंग करेक्टिव मेजर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सो डैट इन फ्यूचर इट मैचेस विद द प्लान। ठीक है, फिर उसके लिए क्या है, करेक्टिव मेजर्स को लिया जाता है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, कि जैसे परफॉर्मेंस को हम लोग इम्प्रूव कर सके सो दैट इन फ्यूचर इट मैचेस विद द प्लान, कि फ्यूचर में वो प्लान के साथ मैच कर सके, इसलिए करेक्टिव मेजर्स लिया जाता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। अगर बहुत माइनर डेविएशन है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अगर प्रेजेंट बिजनेस इन्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा है प्लान और स्ट्रैटेजीज तो उनको फिर से रीडिज़ाइन किया जाता है और करेक्टिव मेजर्स लिया जाता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सो दैट फ्यूचर में क्या हो, वो जो भी हम लोग का प्लान्ड परफॉर्मेंस है वो उसके साथ मैच करे। ठीक है, yes. So generally the manager take measure to improve the performance such as sending the employees for training if the deviation is due to inefficient performance, getting the machine repaired if delay in performance is due to fault in the machinery, making the supervisor more responsive. ठीक है, तो ऐसे क्या है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स को लेते हैं कि जैसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिमूव कर सके। तो मेजर लेते हैं कैसे इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, कैसे परफॉर्मेंस करेंगे, सेंडिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, ट्रेनिंग के लिए सेंड करेंगे इफ़ द डेविएशन इज़ ड्यू टू इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस, कि अगर जो डेविएशन आ रहा है एक्चुअल और प्लान्ड के बीच में, अगर वो डेविएशन इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की वजह से आ रहा है, उस केस में क्या किया जाएगा, सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जैसे वो ट्रेंड होके स्किल्ड होकर आएंगे तो वो प्रॉपरली काम करेंगे, तो जो भी डेविएशन हो गया था वो ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, गैप को हम लोग ब्रिज कर देंगे। गेटिंग द मशीन रिपेयर्ड इफ़ डिले इन परफॉर्मेंस इज़ ड्यू टू फॉल्ट इन द मशीनरी, फिर क्या करेंगे, मशीन को भी रिपेयर करवाएंगे। क्यों?
जब ये हमें पता चलेगा कि जो भी फॉल्ट हो रहा है, जो भी परफॉर्मेंस में डेविएशन आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है कि मशीन सही नहीं थी, फॉल्ट था मशीन में, इसलिए वो डेविएशन आया। तो उस केस में जो भी मशीन की वजह से प्रोडक्शन हुआ है, डेविएशन हुआ है, तो उनको भी रिपेयर करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। फिर मेकिंग द सुपरवाइजर मोर रिस्पॉन्सिव, जो भी सुपरवाइजर्स हैं उनको भी क्या किया जाएगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया जाएगा कि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ के लिए, कि अगर कोई भी ऐसा ना हो कि वो ध्यान ही ना दे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस केस में उनको भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है। सो इफ़ delay is due to carelessness and laziness of the employees, sometimes the manager have to set the standard and target again if standard are not realistic and achievable। ठीक है। अब कह रहा है कि if delay is due to carelessness and laziness of the employee, अगर ये जो डिले हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एम्प्लॉय का केयरलेसनेस है, कि एम्प्लॉयज़ बहुत केयरलेस हो गए हैं और बहुत लेज़ी हैं, तो समटाइम द मैनेजर हैव टू सेट दी स्टैंडर्ड और टारगेट। फिर उस केस में जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, टारगेट को और स्टैंडर्ड को फिर से सेट कर देता है कि आपको इतना प्रोड्यूस करना ही करना है। इफ़ स्टैंडर्ड आर नॉट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, अगर उनको टारगेट रियलिस्टिक और अचीवेबल नहीं लग रहा है, तो उस केस में मैनेजर क्या करेगा, टारगेट को सेट कर देगा दैट यू हैव टू अचीव टिल द एंड ऑफ द डे। आपको एंड ऑफ द डे आपको करना ही करना है। तो उससे क्या हो जाएंगे, वो जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे और उनको वो करना ही पड़ेगा। ठीक है। सो द रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द डाउनवर्ड रिवीजन बिकॉज स्टैंडर्ड आर रिड्यूस टू मेक देम रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड का जो भी टारगेट का रिवाइज किया जाएगा उसको डाउनवर्ड रिवीजन कहते हैं, बिकॉज जो स्टैंडर्ड है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, जो भी टारगेट था उसको कम कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा अचीव कर सकें, इसलिए उसका भी कम कर दिया जाएगा। सो समटाइम द परफॉर्मेंस इज़ हायर देन दी सेट टारगेट्स। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो परफॉर्मेंस हो रही है वो टारगेट जितना लेके रखे तो उससे ज़्यादा हो रही है। इन दैट केस अपवर्ड रिवीजन ऑफ द प्लान इज़ डन। ठीक है। उस केस में क्या होगा, जब हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगा टारगेट से, तो वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड रिवीजन हो जाएगा प्लान का, इज़ डन एंड प्लान आर सेट एट दी हाई रेट, और प्लान को ज़्यादा हाई रेट से सेट करेंगे सो दैट दे मैच विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिससे वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच कर सके। ठीक है। सो द मैनेजर मस्ट टेक करेक्टिव मेजर ओनली बाय द फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ द डेविएशन एंड ट्राई टू रिमूव दैट कॉज। ठीक है। मैनेजर उसी केस में करेक्टिव मेजर ले सकता है जब उसको जो भी डेविएशन आ रहा है उसका वो रूट कॉज पता चल जाए। मतलब उसको वो, हम लोग बोलते हैं ना, रूट, किसी भी जो ट्रीज़ का या प्लांट का रूट होता है, मतलब उसका बेस से, जब कोई भी डेविएशन का बेस पता चल जाए कि उसकी वजह से ही ये हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजर क्या है, एक करेक्टिव मेजर्स को ले सकता है। अगर उसे यही नहीं पता है कि ये जो भी डेविएशन हो रहे हैं वो उसका रीज़न क्या है, तो वो उसका कोई भी एक हम लोग कह सकते हैं उसका कोई सॉल्यूशन वो अच्छे से नहीं निकाल सकता है जब तक किसी को प्रॉब्लम ना पता हो। ठीक है। तो करेक्टिव मेजर लेता है ओनली बाय फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ द डेविएशन एंड ट्राई टू रिमूव दैट कॉज, और ट्राई करता है कि वो जो भी कॉज हुआ है हम उसको रिमूव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज फीडबैक इन कंट्रोलिंग में फीडबैक। सो okay, so the controlling function does not end by taking corrective action as it is a continuous process। ठीक है। कंट्रोलिंग फंक्शन एंड नहीं हो सकता है बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन, बिकॉज वो क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ये नहीं कि कोई करेक्टिव मेजर्स ले लिया गया कोई भी डेविएशन का, तो उस केस में जो भी आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा, नहीं, वो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहेगा। आफ्टर सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर अ फीडबैक रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर। ठीक है। जैसे कोई एक करेक्टिव मेजर्स बता दिया जाता है कि हाँ जो भी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन ऐसे है, तो एक फीडबैक रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है, एक प्रॉपर
फीडबैक रिपोर्ट बनती है उसको प्रिपेयर किया जाता है। एंड फीडबैक refers टू द लिस्ट ऑफ रीज़न फॉर डेविएशन ऑफ प्लान्स और फॉर इनएफिशिएंसी इन ओवरऑल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फीडबैक क्या रेफर करता है? अ लिस्ट ऑफ रीज़न, जो भी डेविएशन आ रहे हैं, जो भी प्लान्स बने थे उनमें जो भी डेविएशन आ रहे हैं उनके रीज़न क्या क्या हैं, किसकी वजह से वो सारे डेविएशन आ रहे हैं, और फॉर द इनएफिशिएंसी इन ओवरऑल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इनएफिशिएंसी जो भी वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें क्यों ये ऐसा इनएफिशिएंसी हो रही है, उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। कि एक रीज़न बनता है कि किसकी वजह से ये सारे डेविएशन आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है क्यों ये प्रॉपरली रन नहीं हो रही है, तो उसके रीज़न को बनाना ही क्या है, उसका एक फीडबैक तैयार करते हैं। सो अलॉन्ग विद द रीज़न फॉर द करेक्टिव मेजर आर ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द फीडबैक रिपोर्ट। ठीक है, एक तो पहले उसमें रीज़न भी होता है कि किसकी वजह से डेविएशन आ रहा है, फिर उसके साथ उनके करेक्टिव मेजर्स भी हो सकते हैं कि कैसे हम उन सारे कॉजेज़ को रिमूव कर सकते हैं। एंड फीडबैक एक्ट एज अ बेस to establish the standard for the next year and controlling process again start from first step। ठीक है, अब फीडबैक क्या है? एक बेस की तरह इस्टेब्लिश होता है फॉर द टारगेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब अभी अगर क्या है, फीडबैक बन गया, रीज़न पता चल गया, कॉज पता चल गया, उसका हमें करेक्टिव मेजर्स ले लिए, आज जो वो रिपोर्ट तैयार हो गई तो वो हमारे नेक्स्ट जो ईयर का हम टारगेट बनाएंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक बेस तैयार हो जाएगा कि हाँ नेक्स्ट ईयर भी अगर ये प्रॉब्लम होती है तो हम उसके मेजर्स से, करेक्टिव मेजर्स के थ्रू जान सकते हैं हाँ ये प्रॉब्लम है, तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड देन अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। फिर अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम लोग वही फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे कि कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल प्लान्ड में जो डिफरेंस होगा, डेविएशन होगा, तो फिर वही प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली रन होगा। ठीक है, देखिए ये कंट्रोलिंग प्रोसेस को कैसे शो कर रहा है। कंट्रोलिंग प्रोसेस है, पहले सेटिंग अप ऑफ अ टारगेट, हम टारगेट को सेट करेंगे। मेजरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, जो भी परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करेंगे अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, मतलब टारगेट के अगेंस्ट हम देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड के परफॉर्मेंस के बीच में। एनालाइजिंग द डेविएशन, जो डेविएशन आ रहा है उसको एनालाइज करेंगे कि डेविएशन कैसे आ रहा है। देन डेविएशन को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, जो अर्जेंटली नीडेड है और जो थोड़ा सा माइनर नीडेड है, उन सारे डेविएशन को। नेक्स्ट होगा टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, फिर हम क्या करेंगे, कुछ करेक्टिव मेजर्स लेंगे कि कैसे हम वो सारे डेविएशन को रिमूव आउट कर सकते हैं। एंड देन ये क्या करेगा, फीडबैक प्रोवाइड करेगा। फीडबैक में हम लोग लिस्ट ऑफ रीजंस देखेंगे एंड देन उसके करेक्टिव मेजर्स देखेंगे। फिर हम लोग फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर देंगे कि टारगेट को सेट करना, उनको मेजर करना। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज़ ऑल योर कंट्रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज़ डेविएशन इन कंट्रोलिंग, कि ये डेविएशन कंट्रोलिंग में है क्या। तो आप लोग एकदम आई थिंक सो इतने दिनों के बाद भी अभी समझ गए होंगे डेविएशन रेफर्स टू, यहाँ पे डेविएशन क्या कहता है, डेविएशन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड मतलब जो भी टारगेटेड और प्लान्ड। ठीक है, सो डेविएशन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान्ड परफॉर्मेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। डेविएशन इज ऑल्सो कैन बी अ पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। जो डेविएशन है वो दोनों टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब हम अगर 100 सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल 500 यूनिट सोच रहे हैं और हमने प्रोड्यूस कितना कर लिया, 700, तो यहाँ पे जो ये 200 हो गया वो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। बट अगर हम लोग 500 का सोच रहे हैं और एक्चुअल प्लान्ड हमारा 500 था बट एक्चुअल हमारा 300 आ रहा है, तो ये जो 200 का डिफरेंस हो गया वो निगेटिव हो गया। सो डेविएशन कैन बी ऑल्सो अ टू type, positive deviation and negative deviation. So you can see here that I have already given the example. When the actual performance is better than the planned performance, जब actual ज़्यादा सही हो planned performance, actual ज़्यादा हो plan से, then it is the positive। कि आपने plan किया था 100 यूनिट्स का,
एक्चुअल इन प्रोडक्शन 120 का हुआ है, तो 20 क्या हो रहा है, डेविएशन तो है बट ये क्या है, पॉजिटिव में है, ज़्यादा हो रहा है, +20 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निगेटिव। निगेटिव में मतलब व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन दी प्लान परफॉर्मेंस, देन इट इज़ कॉल्ड दी निगेटिव। यहाँ पे देखिए प्लान है 100, एक्चुअल है 80, तो डिफरेंस कितना, माइनर। Okay, so deviation is simply it is the difference between the actual and planned, and deviation is also of two types, that is positive and negative. Okay, so this is all about your chapter controlling. In the next class we will start the next chapter.